Now let me know whether it is visible to you. Are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So we are in this topic. We left in between this energy flow. All right. So energy flows from where to where? Like from the base, the foundation of life. What is it? Anyone? How life, how energy flows from one level to the other. What is the base? What is the, you can say, the fundamental unit? मैम Ma'am, इकोसिस्टम मैम इकोसिस्टम मेन सन मैम पूरा प्रोसेस बता दें आराम से. no, no, I'm just asking the base of ecosystem to survive. What मैम you call, from where the energy flows to where? मैम सन मेन सन से हमें ऊर्जा मिलेगी. Hmm. ऊर्जा से फिर हमारा उत्पादन होगा, जैसे पौधे, छोटे-छोटे पौधे, उससे Hmm. फिर हमारा भोजन बनता है. मेन जो छोटे शाकाहारी जीव हैं, उनका भोजन Hmm. बनता है, वो Hmm. खाते हैं. मेन वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं. Hmm. उसके बाद में द्वितीय द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, जो उन शाकाहारी जीवों को खाते हैं. हाँ, उसके बस enough. मैं ये कहना ओके. चाह रही थी कि what is the base? If it is in term of abiotic factor, then there are so many abiotic factors, so many non-living, but important factors to, you know, to make this for the survival of the ecosystem. All right. Now, keeping it aside, what about the, you can say, how the energy flow between the living beings? So the base of that system, or you can say the base of that cycle, is called producers, right? Who produces the energy so that it is uh, consumed by some other species, other living being, and then the energy is transferred from one living being to another living being, and then from that living being to another living being. All we are talking about the energy flow between the living beings. See, sun is the base, air is another factor, water is another factor, soil is another factor, but all are abiotic. I am talking about the biotic factors. So, in biotic factors, the basic uh, energy is get transferred from producers to other consumers. So, we yesterday we talked about producers like autotrophs, which we call autotrophs means who uh, who prepare their food or their energy themselves. They don't need any living being to help them, or they don't consume any living being. They consume, or they need only the abiotic factors, not the biotic factors. They are biotic, but all right, and they are consumed by some other species, so that they transfer their energy to another species, and like that the cycle, the flow of energy will takes place, right? So first the base is producer, and then it can shift to the consumers who consumes this um, grass or plant or any leaf or in any form, you can say. So consumers are called heterotrophs, producers are called autotrophs. These two words are Greek words. Auto means self, right? And trophs means nourishment, how they nourish themselves, how they survive in this world. Or you can say make the ecosystem to, go on in a particular manner. So autotrophs or producers are self-dependent for their nourishment, for their growth, for their food. And consumers are heterotrophs. Hetero means other, not self. Matlab, heterotrophs or consumers, they depend on other creature or other living being for their survival, for their life, for their food, for their survival, right?
So they are called heterotrophs. Hetero means other, trophs means nourishment. पर पोषक जिसे बोलते हैं. So these are the animals that directly or indirectly depend on plants for food, and they are, they are having a certain trophic level. Now, first one is primary consumers. Primary consumers are always herbivorous. They feed on plants or you can say trees or fruit or anything. So they may be insect, they may be bird, they may be mammals or mollusks or so many other creatures. And there are secondary consumers who are primary carnivores. They feed on herbivores, right? Other animals, you can say, not the vegetation side. Some other living creature, living animal. They may be frog, fox, man, anyone. And then there are tertiary consumers or the secondary carnivores who feed on primary carnivores, right? The upper one, depending upon the hierarchy of this trophic level. They may be tiger, lion, or big birds, or anyone. Like in this picture you have seen, the primary producer is grass. Now, grass, by using some abiotic factors, it grows, it is having some nutrients, some food, which can be taken by some insects, say here in grasshopper. It takes that, eats that grass and had this energy to survive for their growth. And this insect is again eaten by frog. So frog will get energy from the insect or the grasshopper. Then frog is eaten by snake. Snake is getting energy from the frog. And snake is maybe some big animal or some big birds. It is eaten by those birds or big animals, then snake, powerful animals. So they'll get energy from that snake. And this hawk or the final consumer, it dies one day in any manner, and then the decomposition takes place and it becomes, a mode of food and energy to some microorganisms, some fungi or some decomposers. And then all the nutrients of this animal will be like decomposed, and it is taken by some species in one way or the other. And then finally all the decay part is going to be deposited in the earth. So all the nutrients will be either taken by some species or it goes down to the earth. हिंदी में इसको कैसे समझेंगे? एनर्जी फ्लो, मतलब ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसे होता है. देखो, यही चीजें बार बार रिपीट होंगी. एक बार इसको अच्छी तरह से यदि आप समझ लेंगे तो बाकी की चीजें आपको समझने में आसानी होगी. कंज्यूमर का क्या मतलब होता है कि उपभोग, जिसे आप उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, जो किसी चीज को यूज कर रहा है. ठीक है. प्रोड्यूसर का मतलब है कि जो उत्पादक करता, मतलब उत्पादकता जिसमें जो खुद ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, किसी भी चीज को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी लिविंग बीइंग के ऊपर, किसी जीवित उस पे वो अपने फूड के लिए, अपने ग्रोथ या अपने विकास के लिए वो निर्भर नहीं है. उसको बोलते हैं स्वपोषक, जो हमने कल पढ़ा था प्रोड्यूसर्स. आज पढ़ेंगे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मतलब जो उपभोग करते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मतलब परजीवी, मतलब जो पर पोषक, जो दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए, अपने विकास के लिए निर्भर करते हैं. उनमें एक आता है प्राइमरी, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं. वो कौन से होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं. हर्बीवोरस का तो आप क्या बोलोगे हिंदी में? जो कि शाकाहारी है ना, जो कि प्लांट्स खाते हैं या पत्तियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, मतलब कुछ भी वेजिटेशन, जो शाक सब्जियां हैं या हरी भरी जो भी वनस्पति है, जो भी चीजें खाते हैं, किसी और जानवर को नहीं खाते, उनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता है. जैसे उनमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, चिड़िया, बर्ड्स आ जाती हैं, मैमल्स आ जाते हैं. मैमल्स जो हैं वो जनरली
जैसे ह्यूमन बीइंग है वो हर्बीवोरस भी हो सकता है, वो प्राइमरी कार्निवोरस भी हो सकता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या होंगे, वो जो प्राथमिक हाँ मैम मॉलिशस क्या होता है? ये मैमल्स के बाद जो है मॉलिशस। मॉलिशस भी एक तरह का कीट ही मान लो उसको, जी है ना। जी अ, मैम। हाँ तो हम कहाँ थे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में थे, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस पे, मतलब कि जो द्वितीयक जो उपभोक्ता है वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो प्राथमिक पे डिपेंड करेंगे, वो उनको खाएंगे, उनसे अपनी एनर्जी लेंगे। कोई भी चीज, कोई भी जो भी जीवित वस्तु है, जो जीवित नहीं है उनको तो खाने की जरूरत होती नहीं है, उनको तो एनर्जी की जरूरत है नहीं, एनर्जी जो उनमें है वो है। लेकिन जो जीवित है उसको छोटे से बड़ा होना है है ना, अपना विकास करना है, कुछ काम करना है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी कुछ खा के लेता है, फूड से लेता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी वो खा रहा है उससे उसको ऊर्जा मिल रही है, इसीलिए वो एक तरह से खाता है। तो ये जो मैंने क्या बताया आपको कि जो सेकेंडरी उपभोक्ता है वो प्राइमरी को खाएंगे, इंसेक्ट्स को खा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया कि फ्रॉग ने जो है, ये जो फ्रॉग है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये जो इंसेक्ट है, ग्रास ऊपर है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि इसने क्या खाया, इसने घास खाया, तो ये फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, उपभोक्ता हो गया। ये दूसरा, क्योंकि इसने इसको खाया। ये तीसरा स्नेक टर्शरी हो गया, और उसके बाद में फाइनल कंज्यूमर हो गया आपका ये हॉक। जो बड़े बड़े बाज और बड़े बड़े पक्षी होते हैं वो खा लेते हैं इनको। तो इनको भी कोई खा सकता है, ऐसी बात नहीं कि इनको कोई नहीं खा सकता, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये अपने आप ही जब खत्म हो जाते हैं तो ये किसी और का खाना बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो, क्योंकि डिकम्पोज हो गया, वो सड़ गए, गल गए, फिर से उस धरती में मिल गए, और धरती से फिर घास होगी, इस तरह से ये पूरा एक फूड चेन जो है वो बनता है। तो जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको कहते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर तृतीयक जो होते हैं वो जो द्वितीयक को खाते हैं। तो इस तरह से ये एक जो पूरा चेन बनता है, और इसको जो है एक तरह से एनर्जी फ्लो जो है वो इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक एनर्जी जो है वो किसी फॉर्म में जो आप खा रहे हो उसके उसके पास जितनी एनर्जी थी उसका कुछ परसेंटेज आपके पास आ जाता है। तो ये जो चेन है, नाउ दिस चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन। This is the definition of the food chain, and there are two types of food chain. One is grazing food chain and second is detritus food chain. You must be knowing the meaning of these two very well now, है ना। What is grazing food chain? Grazing food chain is something which is plant based, like grass based or plant based, and detritus food chain which depends on uh, the waste or the, you can say, the waste material, and all which is decomposed material of the dead organisms. That cycle is detritus food chain. तो जो फूड चेन है एनर्जी फ्लो के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, खाद्य श्रृंखला, वो कैसी, वो क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस चेन में है वो किस तरह से रिलेशनशिप आपस में बनाते हैं, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो दो तरह के हैं, एक तो है ग्रेजिंग और दूसरा है डिट्राइटस। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो चराई जिसे बोलते हैं ना, जो प्लांट बेस्ड हो बेसिकली, जो हमने अभी पहले पढ़ा, जिसका जो बेस है, जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, जो फर्स्ट उत्पादक जो है वो कौन है, या तो वो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, उनके फल हैं, या फिर घास है। और डिट्राइटस फूड चेन को हमने क्या बोला था कि जो सड़ी गली चीजों से के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो लाइफ उस पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं डिट्राइटस, सड़ी गली चीजों के ऊपर जो डिकम्पोज हो जाता है, जो डेड हो जाती है, चाहे वो
प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, यदि वो खत्म हो गए, धरती पे आ गए, उन्होंने किसी ने उसको थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी सब वो सड़ गई, गल गई और फिर से वो एक लाइफ को स्टार्ट करने का एक माध्यम बनती है, तो वो एक फूड जो चेन है, वो जो खाद्य श्रृंखला है, उसको बोला है डिट्राइटस। सड़ी गली चीजों पे के हिसाब से जो बनती है, अवशिष्ट जिसे आप बोल सकते हो, अवशिष्ट खाद्य श्रृंखला, और ग्रेजिंग को बोलोगे चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अब एनर्जी फ्लो, how it flows from one tropic level to the another one. Now here, first chain, that is the grazing food chain, here the primary consumer feeds on the living plants, that are the producers. Now these producers are the food for primary consumers, and these primary consumers may be food for the secondary consumers, and then so on. The example is like this: a cabbage. Cabbage is eaten by some caterpillar, some insect, and or some worms, and these are eaten by some bird. Then this is the primary consumer. This is this is the producer. Caterpillar is primary consumer, and this bird is secondary consumer. If some bigger bird or some other animal eat this bird, then that will be the tertiary consumers. All right. Now in detritus food chain, what happens here? The primary consumer will be dead leaves, or maybe dead leaves, maybe the dead part or a decayed part of any animal when it dies. So all the bugs, there are some birds here, bugs. Here it is the example is taken of a wood louse. Okay, now it eats these dead leaves or any other decayed part of any animal, and then it is eaten by some other bird. And here the producer are dead leaves, detritus. You can say. Thing, and then it is eaten by some insects. Here it is written wood louse, that means this is the primary consumer, and this blackbird is the secondary consumer. And if this bird is eaten by some bigger bird or some other animal, then they are termed as tertiary consumers. So death of organism is the beginning of this food chain. That's why it is called detritus food chain. हिंदी में समझ लेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जो चराई वाली जो श्रृंखला है, उसमें घास होगी सबसे पहले, उसके बाद में जो भी हमने पढ़ा कि घास को यदि एक बकरी खाती है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी, इस बकरी को आदमी ने खा लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये कैबेज है, कैबेज को आदमी भी खा सकता है, कैबेज को कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं, तो कीड़े मकोड़े ने खाया, कीड़े मकोड़े को किसी बर्ड ने खा लिया, तो यहाँ पे ये जो कैबेज है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, और ये जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और ये जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इसको सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक, और टर्शरी का मतलब है तृतीयक। तो यहाँ पे इस बर्ड ने खाया, इस बर्ड को किसी और बड़े बर्ड ने खा लिया, बड़े पक्षी ने, किसी और जानवर ने खा लिया, तो वो टर्शरी हो जाएगा। इसमें यदि आदमी ये कैबेज को खाता है मान लो, लेकिन आदमी जो कैबेज को खाता है तो वो जो श्रृंखला है वो वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी को खाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए इस कैबेज को कैटरपिलर के लिए बताया है कि कैटरपिलर भी खाता है। और ये जैसे यहाँ पर बताया कि भाई गोट क्या खाता है, गोट हरी चीजें ही खाता है, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें ही खाता है, और उसको आदमी ने खा लिया तो आदमी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। ठीक है, और ये जो डिट्राइटस है, जो सड़ी गली चीज, अवशिष्ट जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें जो बेस है, जो प्रोड्यूसर है, वो डेड लीव्स होती हैं। लीव्स भी हो सकती हैं, किसी एनिमल का डिकेड बॉडी भी हो सकती है, यदि वो कहीं ऐसे ही जंगल में पड़ा है तो उसको दूसरे जानवर खा लेते हैं, और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सड़ गल करके वो जो है वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, अब इस पे कीड़े लग जाते हैं, कीड़े खाते हैं उसको, तो कीड़े यदि खा रहे हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और उसके बाद में उस कीड़े को कोई और खा रहा है तो वो सेकेंडरी हो गया, और उस जीव को कोई और खा रहा है तो वो तृतीयक जो है वो उपभोक्ता हो जाएगा।
इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया है here. You can understand by a simple example here. Detritus is made of decomposers. You can call it saprotrophs also, such as fungi or bacteria, and they secrete digestive enzymes that break down detritus into simple inorganic material, which are absorbed by them, and then they get energy and nutrients from those decayed parts of that base, you can say, base animal, decayed animal, or decayed fruit, or decayed leaves. Anything can be a primary producer here. Anything which is decayed. So here they have given the example of some bacteria, and here they are giving some example of fungi or mushroom, because they are the decomposer fungus, this mushrooms. There are variety of mushrooms here. What we eat as a vegetable, they are also produced in some dark zones where some humidity and some on the decayed parts of plants and some shrubs or like that. They create artificially that atmosphere to grow, and some humidity, some temperature, they maintain that and they grow a particular species of mushrooms because they are rich in nutrients. They are very, very rich in nutrients. And then decompose fruit due to the fungus. Sometimes if you leave some fruit or you didn't pay attention, then they slowly their shape, their color will be fade down, and some you can find some white structure, a web-like structure on the fruits. So this is what this is. Fungus. Fungus is a living creature, all right, which gets energy or food from those decayed part of fruits. हिंदी में इसको समझ लेंगे, वही चीजें हैं बार बार कि जो सड़ी गली चीजें हैं जो कि कहाँ से बनती है, डिकम्पोजर्स, जो कि उस एक डिकेड पार्ट को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं, जैसे कि फंगी है, बैक्टीरिया है ना, फफूंद वगैरह जो हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सीक्रीट करते हैं, तो वो खुद को खुद के लिए एक ऊर्जा उससे लेते हैं, अपना विकास करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, और उसको धीरे धीरे छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में वो तोड़ते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं धीरे धीरे, जहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं अपने को सरवाइव करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ग्रीन जो कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं, डिकेड यदि चीजें पड़ी हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स का या फिर किसी पेड़ पौधों का जो है वो कचरा हो, या जो वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, वो वहां पर जो है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जब यदि थोड़ी सी उसमें नमी है, थोड़ा सा धूप भी है, टेम्परेचर भी है, तो वो डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। ये डार्क में डेवलप होते हैं। ये फंगस जो है, फंगी जो है, जो मशरूम जिसे हम कहते हैं, अलग अलग, देयर आर थाउजेंड्स टाइप ऑफ मशरूम्स इन द वर्ल्ड, और उनमें से कुछ जो चीजें हैं, कुछ मशरूम्स को हम खाते हैं जो आर्टिफिशियली जो है फार्म्स में और उनके एक जगहों पे, पर्टिकुलर स्पेस में, उनके हिसाब से जो है एनवायरनमेंट, मिट्टी और टेम्परेचर, और क्योंकि ये जो मशरूम्स हैं ये डार्क में होते हैं, तो उसके लिए बहुत सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, तो वो तरह का माहौल बनाया जाता है जो हमारे लिए, क्यों मशरूम्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी तरह से ये जो फंगस है, यहाँ यदि कोई फल फ्रूट आपने रख दिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसका शेप, आप उसको छुओगे तो वो एकदम पिलपिला सा, एकदम ऐसे गला हुआ सा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फफूंद लग जाता है। फफूंद भी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। धीरे धीरे वो उसको मतलब वो डेवलप हो रहा है, आपका जो चीज है वो खराब हो रही है, डिके हो गया, वो सड़ गया, और कोई और चीज जो है उसने उसको अपना खाना बना लिया, उसको सड़ा दिया, इस तरह से। तो एनर्जी फ्लो, हाउ इट फ्लोज now in aquatic ecosystem, the major conduct of energy flow is GFC. GFC is
grazing food chain that we have already seen in just before this slide. And in terrestrial ecosystem, a much amount of energy flow through the DFC, that is the detritus food chain, than through the GFC. That is important. And DFC may be connected with GFC at some level, yes. Some organisms of DFC are prey to GFC animals like cockroaches, crow, human. They are omnivorous. They can eat some food from the plant-based food or other living beings, other living creature-based food. So such interconnection of food chains are called food web. Remember this term, food web. All right, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे खाद्य का एक जाल, एक तरह से आप मान लो. तो उसको let's understand first. In this diagram there are GFCs here. All right, there is a corn, there is a flowering plant, and there are some fruits. Now this fruit is eaten by some fruit fly. Now this fruit fly can be eaten by another big insect, maybe bird, or maybe a frog. All right. So this is food. This may become the food for these three creatures. Now here it is. Now this bird is eaten by eagle, can be eaten by some wolf or some big animal, and this eagle is a supreme here. All right. Now see another lower level, the primary consumer. It may be a butterfly. Now this butterfly can be eaten by a frog, can be eaten by a big insect, and this is a grasshopper, which is can be eaten by this frog, can be eaten by some rat or something. Now this frog or rat can be eaten by this big snake, and this rat can be eaten by a wolf, can be directly eaten by this eagle, and this frog can be directly eaten by this eagle. So that way there may be a different type of you can say chain. So this is called the food web basically. So you can understand that there is no particular you can say hierarchy that this particular creature or this particular animal you can keep at first trophic level or second primary consumer or secondary consumer or tertiary consumer. It depends upon the which food chain you are taken into account. हिंदी में इसको समझेंगे कि जो ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी फ्लो है वो एक्वेटिक का मतलब है जो हमारा जल का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें बेसिकली जीएफसी मतलब कि जो ग्रेजिंग फूड है, मतलब जो चराई वाला जो फूड चेन है वो जो है एक तरह से मेजर होता है, मेन होता है. टेरेस्ट्रियल में जनरली ऐसा देखा गया है कि जीएफसी तो होता ही है लेकिन डीएफसी भी जो है वो, क्योंकि डिकेइंग बहुत ज्यादा सड़ जाती है चीजें पानी में, फिर भी वो सड़ने से पहले कोई ना कोई उसको यूज कर लेता है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर है, हीट है, हवा है ना, और उसके अलावा लाइट है, तो वो जल्दी डिके होता है और वो बहुत सारी चीजों का कहना चाहिए जानवरों का खाना वो बन जाता है. तो एनर्जी फ्लो जो है वो डीएफसी से ज्यादा होती है, मतलब अवशिष्ट पदार्थों का जो खाद्य श्रृंखला है उससे ज्यादा होती है बजाय की चराई वाले से. अब जैसे यहाँ पर आप हालांकि एक लेवल पे ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी तरह से. अब जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, कॉकरोच है या और भी बर्ड्स हैं बहुत तरह के, जो चिड़ियाएं हैं, ये कौवे हैं और आदमी हैं, ये ओमनिवोरस होते हैं. मतलब कि ये जो प्लांट बेस्ड फूड है वो भी खा लेते हैं और जो एनिमल बेस्ड फूड है वो भी खाते हैं. तो जो ये इंटरकनेक्शन है फूड चेन का उसको कहते हैं, जो खाद्य श्रृंखला का ये जो एक तरह से जाल है इसको कहते हैं खाद्य का, मतलब एक तरह से जाल ही बोलो, खाद्य जाल जो है वो बनाते हैं. अब जैसे ये एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे 4 तरह के
चीजें बताई है जो कि प्लांट बेस्ड है, ये फ्रूट है। अब इस मैंगो को यदि किसी मक्खी ने या कोई और जो फ्रूट के ऊपर नहीं एक कीड़े से रहते हैं, कई बार देखा होगा आपने, जो ये फल वल बेचते हैं वो कीड़े जो है उसके ऊपर रहते हैं। यदि ये जो फल है ये इसने खाया, अब इस इंसेक्ट को कोई चिड़िया भी खा सकती है, जो बड़ा इंसेक्ट है वो भी खा सकता है, ये जो मेंढक है ये भी खा सकता है। अब इस मेंढक को सांप भी खा सकता है, इस मेंढक को बड़ा ये पक्षी भी खा सकता है। उसी तरह से यदि इस बर्ड ने इसको खाया तो इस बर्ड को ये बड़ा बर्ड भी खा सकता है, ये वो जो लोमड़ी है या और भी जो दूसरे क्रिएचर हैं वो भी खा सकते हैं। ये आपका अ, कुत्ते बिल्ली ये भी खा सकते हैं, जो आप रूटीन में आसपास देखते हैं। और सिमिलरली ये जो बड़ा इंसेक्ट है जो कि इस तितली को भी खा सकता है, इस फ्रूट को भी सॉरी फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, जो मक्खियां टाइप होती हैं। तो इस बड़े इंसेक्ट को ये बर्ड भी खा सकता है, ये फ्रॉग भी खा सकता है। अब इस फ्रॉग को इसने भी ये भी खा सकता है, इसको स्नेक भी खा सकता है ना। और जैसे ये यहाँ पर है ग्रास होपर, जो क्या बोलते हैं हिंदी में तो मुझे पता नहीं है, बड़े बड़े से वो होते हैं ना, आपने देखे होंगे इसके ऊपर घास जो बड़ी बड़ी होती है, उसमें ज्यादातर आपको ये नजर आता है इंसेक्ट। तो अब इसको एक मेंढक भी खा सकता है, कोई चूहा बड़ा हो वो भी खा सकता है। अब इस चूहे को ये स्नेक भी खा सकता है, ये बड़ा वाला बर्ड भी खा सकता है, ये जो एनिमल है जो लोमड़ी है कुत्ता बिल्ली ये भी खा सकते हैं। तो इस तरह से और स्नेक को ये बर्ड खा सकता है, ये वोल्फ को भी, ये मर गया मान लो, तो मरने के बाद में तो डिके हो जाता है। आपने देखा होगा जो जानवर मर जाते हैं एक जगह पड़े हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े बर्ड्स जो हैं वो उसको उसका खाना हो जाता है वो। और धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है, और अदर अदर फॉर्म में वो फिर से धरती पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक कहना चाहिए खाद्य श्रृंखला का एक जाल बन जाता है। Now, more specifically, if you place all those consumers and producers in a particular trophic level, so this is important. Sometimes they ask in the examination, they'll give some names of some animals, and there they, in other column, they'll write these three: primary producer, consumer, secondary consumer, tertiary. You have to select which one is correct. So a specific place of organism in a food chain is called their trophic level. उसको उसका बोलते हैं trophic level. So we have seen the first one, the base is primary producers. And for food, primary consumers depend on these primary producers. And secondary consumer depend on primary consumers. Tertiary consumers depends upon secondary consumers. Now, for example, here in primary producers, they call it first trophic level. That is plant, always plant in grazing food chain. All right. So this plant may be phytoplankton. I told you these phytoplanktons are small plants, or very small, very tiny in shape, but they exist on the water surface or just on a shallow water bodies. And this grass and trees on the terrestrial area. This is called the first trophic level. This is the plant-based. And second trophic level, they are herbivorous. Herbivorous means they depend on the primary producers, and primary producers are always plants. So that's why they are called herbivorous. Herbivores. ठीक है, zooplankton, they are again a very small creatures, microscopic organisms on the water bodies. And grasshoppers and cows, all these exist on the terrestrial ground. Then third trophic level, it is carnivores. Carnivores are uh, the animals who depends upon the herbivorous animals. They may be bird, they may be fish, they may be wolf, or any other creature. And fourth trophic level is top carnivorous, in which the man, lion, tigers, very big and birds, they may be the top carnivorous, who depend upon the third trophic level, the third that is the carnivore. So like that, you can place these consumers in different trophic levels.
अब यदि हिंदी में हम बात करें इसकी, तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि प्राथमिक उत्पादक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, ये जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं, उनको आप एक स्तर पे रखते हो, एक जगह पे उनका जो है निर्धारण करते हो कि ये एनिमल किस जगह पे आएगा। उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है बेसिकली कि कौन सी स्टेट में आप उसको जो है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो प्लेसिंग है, उसका जो स्तर है, वो कौन सा वाला आप रखोगे। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो इसमें जो सारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स हैं उसको लिखा हुआ है। उसके बाद में जो सबसे बेस वाला, सबसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो प्राथमिक उत्पादक होता है, उसको बोला है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो है आपके हमेशा प्लांट्स आएंगे। जब वाटर बॉडीज है तो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, और जो आपका जमीनी है उसमें घास हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर आएंगे। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी जो जीव हैं वो आएंगे। और इसमें जो वाटर बॉडीज में जो फाइटोप्लैंक्टन पे बेस डिपेंड करते हैं, वो होते हैं जू प्लैंक्टन्स। वो जो है एनिमल कैटेगरी में डाल सकते हो आप उसको। और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो प्लांट कैटेगरी में आते हैं, पौधों की श्रेणी में आते हैं, ये जीव की श्रेणी में आते हैं। और घास और ट्री पे हम अभी तक देखते आ रहे हैं, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है ना, कोई जानवर हो सकता है, जैसे कि गाय भैंस भी वही खाती है, बकरी भी वही खाती है ना। आपके जो जंगली जानवरों में जो आपके डियर हैं, जो हिरन वगैरह है, वो भी यही खाते हैं, घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। तो वो आएंगे आपके हर्बीवोरस, जो कि शाकाहारी जीव हैं, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। थर्ड पे जो इनको खाते हैं, जो बर्ड्स, फिशेज और ये हैं, वो आएंगे। और फोर्थ पे जो सबसे बड़े एनिमल हैं, सबसे जो ताकतवर कहना चाहिए, वो हैं जो कि इन पे डिपेंड करते हैं। वो आदमी हो सकता है, या जंगलों में देखो तो लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एनर्जी फ्लो जो है उसका एक प्रिंसिपल है कि एनर्जी जो है एक जीव से दूसरे जीव पे ट्रांसफर होती है। इंग्लिश में पहले देख देख लेते हैं कि दिस एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, दैट्स व्हाई दे ईट इट for food, for energy, for their development, right? So this energy flow, how it takes place? It is takes place in two form. All right. Now, the first primary producer are plants. It takes energy and heat from the sun. They grow up. They are eaten by some insects. So some of this energy which is produced by these plants, some of them are go into heat. They transmitted into it, and some energy of these leaves will go to the insect or some caterpillar or whoever is eating this leaves or plants, right? So this is the second tropic level, which we call primary consumers or herbivores. Third one, again, this energy from this insect, it is some energy is going to be in the form of heat, and some energy it is taken by the bird who is eating this uh, caterpillar or any insect. So this is the third tropic level. Like that, all the energies get transferred to the next higher tropic levels, and some energy is wasted or it is not used by that creature or by that consumer, and it goes to heat. All right. And after the tropic level, the highest tropic level, the top carnivores, when they become dead, when they died, then their energy also get, transmitted to or transferred to heat, and some energy is transferred to the insects or worms, whoever is eating these decayed body of this living creature. So like that, this energy transfer or you can say the energy flow through the different tropic levels takes place. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि जो ये ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसे होता है। हमने कहा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ने कहाँ से एनर्जी ली? सन से ली। सन के पास हीट है, लाइट है,
उस लाइट में से कुछ रेडिएशंस लेके प्लांट जो है उसने एनर्जी ली, अपना फूड बनाया और वो बड़ा होने लगा। उसके बाद में इन पत्तियों पे कोई दूसरा वर्म आ गया, कोई कीड़े आ गए, उन्होंने इसको खाया, तो कुछ एनर्जी जो उस लीफ की, उस प्लांट की थी, वो थोड़ी सी हीट में, मतलब कि ऊष्मा में चली जाती है, और कुछ जो है वो उसको कैटरपिलर को मिलती है, जिससे कि उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो होता है। अब इस कैटरपिलर को किसी और ने खाया, किसी और बर्ड ने या किसी और जानवर ने खाया, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर नहीं होती है जो कि इस इंसेक्ट के पास में है। कुछ तो हीट में चली जाती है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ तो एनर्जी वो रिलीज करता ही रहता है। तो उस वो जो कोई और चीज उसको खाती है, तो कुछ परसेंटेज उसको मिलता है और कुछ परसेंटेज जो है वो हीट में चला जाता है। यही साइकिल हमेशा चलती रहती है। जब जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल का जो भी क्रिएचर है, जब वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, डिके हो जाता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसकी एनर्जी भी हीट में ट्रांसफर होती है। और कुछ हमने देखा था अभी, जो अवशिष्ट पदार्थों से की जो फूड चेन थी, खाद्य श्रृंखला थी, उसमें कुछ जो वर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, उनके लिए वो एनर्जी वो उस डिके, उस सड़ी गली चीज से लेते हैं और उनका विकास वहां होता है। और कुछ एनर्जी जो है वो वापस हीट में चली जाती है, ऊष्मा में चली जाती है। तो इस तरह से ये पूरा एनर्जी का फ्लो जो है वो होता है। इसमें एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। The amount of energy decreases at successive tropic levels, which I have already told you. Some energy is wasted in heat, some for their growth and development, and only some percentage of energy is transferred to the other tropic levels. Now, when organism dies, becomes dead biomass, dead detritus material, and this is again an energy source for decomposers because it is rich in nutrients. Don't forget this. And organism at such trophic level depend on those at the lower trophic levels for energy that we already seen. इसको हिंदी में कैसे समझेंगे कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी ऊर्जा उनको मिल रही है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्योंकि एक इंसेक्ट के पास जितनी एनर्जी थी, उसने थोड़ी सी किसी बर्ड को दी, उसने खूब सारे बर्ड्स खाए तो उसको मिल गया, है ना, और सॉरी खूब सारे इंसेक्ट्स खाए तो उसको वो एनर्जी मिली। लेकिन एक इंसेक्ट से उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी ऊष्मा में चली जाएगी। और इस तरह से जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी का जो फ्लो है फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो जब ये हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल का, हाईएस्ट जो कहना चाहिए इस हिरार्की में जो सबसे ऊपर है, वो जब खत्म होता है, तब वो जो डेड मास है, जो उसका जब वो मृत हो गया, तो उसका जो एक तरह से बायोमास को हिंदी में क्या बोलेंगे, कि जो जैविक एक तरह से जो भी मैटर है, जो भी वेट है, जो भी उसका जो पूरा वो है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है, गल जाता है, और वो किसी और के लिए जो है वो ऊर्जा का साधन बनता है, डिकम्पोजर्स के लिए, जो कि उसको फिर से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट बदल देते हैं। एक सॉलिड बॉडी को टुकड़ों में हो जाता है, वो बदल जाता है क्योंकि वो सड़ जाता है, गल जाता है। तो इस तरह से आप ये देखो कि एक जो हायर लेवल का जो भी क्रिएचर है, कंज्यूमर है, उसको जो लोअर लेवल से एनर्जी मिलती है वो हमेशा कम होती है परसेंटेज में, क्योंकि पूरी 100% एनर्जी किसी भी लिविंग क्रिएचर की ट्रांसफर नहीं होती है किसी और हायर हायरार्की में, जो है हायर जो श्रृंखला में है, उसको कम मिलती है। अब जैसे यहाँ पर है कि द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन एनी ट्रॉपिक लेवल एट एनी गिवन टाइम is called standing crop. All right, whatever it is available at a particular time at any area, at any tropic level, is called standing crop, and it is measured as biomass. Biomass means all the total weight, or the mass of the living organism, or you can see the number in per unit area. And this biomass of any species, it is measured in terms of fresh or dry weight, means moisture free weight, you can say. It is more accurate because it is the exact mass of the body which remains constant. Otherwise, if it is uh, containing moisture or water accumulated body, so it varies from
from the place to place or from one body to another body. So generally dry weight is considered as biomass. So number of tropic levels in GFC is restricted as follows: 10% law. 10% law means what? Only the 10% of the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level. That's what I um, uh, told you earlier. हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि जो भी बायोमास है, जो भी मतलब कह लो कि क्या बोलते हैं बायोमास को हिंदी में, किसी को पता है तो वो बता सकता है। बायोमास का मतलब जो जितना भी वेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एरिया में, उसी को जो है वो बायोमास कहते हैं। जो जैविक एक तरह से भार जो है, ये समझ लो आप, है ना। नंबर जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, उससे उसको मेजर करते हैं कि यहाँ पर इस चीज का क्या बायोमास है, कितना वेट है उसका। जनरली इसका जो यूनिट है वो भी ग्राम किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में इसको लिया जाता है, हमने पहले भी देखा था। तो जनरली ड्राई वेट जो सूखा वजन है वो लेते हैं, क्योंकि यदि पानी है उस पर्टिकुलर जगह में, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं या दूसरे में आपको वाटर ये फूड वुड लॉग्स हैं, जो बड़ी बड़ी लकड़ी के तने ये दिखाई दे रहे हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट यदि लोगे तो उसका जो मास है, जो उसका वेट है वो वेरी करता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितना परसेंटेज उसमें वाटर है। तो इस तरह से ड्राई वेट को कंसिडर किया जाता है। और ये एक जो एनर्जी फ्लो का एक रूल है। रूल क्या है? मतलब ऐसा ही समझा गया, ऐसा ही जाना गया कि 10% लॉ इसको बोलते हैं। 10% लॉ को ये फॉलो करता है। उसमें क्या होता है कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है उससे हायर ट्रॉपिक लेवल पे यदि आप जाएंगे तो सिर्फ 10% एनर्जी, 10% ऊर्जा ही जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे ट्रांसफर होती है। बाकी जो है वो या तो वेस्ट होती है या फिर कहना चाहिए हीट में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। पूरी 100% एनर्जी यदि आप किसी चीज को खा रहे हैं तो पूरी की पूरी 100% आपको नहीं मिलती है, सिर्फ 10% ही आपको मिलती है, आप उसको कंज्यूम करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। दीज इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. They ask upright pyramid, lower inverted pyramids, like that. So the lower most part of this pyramid are producers. Now producers, in case of numbers, it is always larger as compared to the primary consumers, that is the herbivores. And these herbivores are always larger in number as compared to carnivores. And the top predators are always less as compared to carnivores. So this pyramid is pyramid of number is always upright. Let's see in detail. इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 3 टाइप के पिरामिड हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। So the representation of food chain in the form of pyramid is called ecological pyramids, and the base of the pyramid represents the first trophic level, which are always producers, and the apex represents the tertiary or the top level consumers. And these pyramids are of 3 types: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. अब pyramid को इसमें समझ लेते हैं। इसको जो एक तरह से representation है, ये question ऐसे आता है कि pyramid of number जो है वो किस तरह का होगा, इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, सीधा होगा। ये सीधा पिरामिड है। अब यदि इसको उल्टा कर दे तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा पिरामिड। अभी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का पिरामिड उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो आप देख लेते हैं कैसे पूछा है। अब यहाँ पे ये नंबर्स के बारे में है कि जो फर्स्ट लेवल है, जो बेस है पिरामिड का, देखो 4 सेक्शन है यहाँ पे। ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन है ये अलग करती है एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से। तो बेस जो है वो है हमेशा प्लांट्स बेस्ड, जिसको कि हमने बोला है प्रोड्यूसर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आते हैं, वो नंबर में हमेशा कम होते हैं, किससे? प्रोड्यूसर से। और जो सेकेंड लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं, जो
द्वितीय उपभोक्ता हैं वो प्राइमरी उपभोक्ता से कम होंगे, और जो टॉप लेवल के जो भी एनिमल्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होंगे। तो नंबर में क्या होता है, नंबर बेस से लेकर के प्रोड्यूसर से लेके टॉप तक कम होता चला जाता है, इसलिए ये जो पिरामिड है ये अपराइट होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं। दूसरा जो है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, और फिर है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं इसके। तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जिसमें कि ट्रीज हैं, हियर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ट्रीज, and then they are eaten by some giraffes. So number of giraffes are less than number of trees or number of grass. And this giraffe may be prey for this lion. So number of lions are always less than number of other creatures. Say for example here giraffe or some deer or some other animals in the jungle. So number will be decreases as you grow from the producers to the top consumers, right? So it is always upright. Remember this. Now then, pyramid of number one, more example. Here there it is shown grass, then rabbits, then snake, and then some hawk or some big animal. So always a plant-based number-based pyramids are always upright. All right. Now, pyramid of biomass. Pyramid of biomass is depends whether it is in the aquatic environment or the terrestrial one. In terrestrial one, it is upright, but in case of aquatic system, it is inverted. I have seen one more example here. No, you cannot. You will get confused here. So biomass means what? The weight, the dry weight. So if the primary producers are having, they are of the weight wise, the biomass wise, if they are heavy, or you can say in grams or in kilograms per meter square, the biomass is calculated. So there is a sharp decrease in biomass at higher trophic levels. The mass of the primary producer is largest, then primary consumers somewhat lesser, secondary consumers somewhat lesser, and tertiary comparatively lesser as compared to the lower level, lower trophic level. So it is right. But in case of aquatic environment, aquatic ecosystem, the biomass of the zooplankton is less as compared to the living creatures or zooplankton, which are based on the phytoplanktons. So the phytoplankton, the weight, the biomass of phytoplankton is lesser as compared to zooplanktons. And zooplanktons are the food for the smaller fishes or smaller creatures. So biomass of them is less as compared to this. So sometimes it is in aquatic environment, in aquatic ecosystem, it is inverted pyramid of biomass. And then energy pyramid. Energy pyramid are always upright because the energy of the primary producer is always higher, it always get greater than the primary consumer, and this energy level of primary consumers are much more as compared to secondary consumers, because only 10% of the energy of the lower trophic level will be transferred to the अपर ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर्स। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि जो बायोमास है, अच्छा टाइम हो गया है, सर आ गए हैं क्या? देखिए कुछ स्लाइड्स ही बची हैं। मैम कंटिन्यू कर लो आप। ओके सर, थैंक यू। 5 मिनट्स मोर। तो हिंदी में समझ लेते हैं हम। जो बायोमास है, जो कि मैंने आपको बताया कि जैविक जो पदार्थ का जो वेट है, जो भार है, उसके हिसाब से यदि आप पिरामिड्स को बनाओगे तो जो आपका जनरली ये शो किया टेरेस्ट्रियल एरिया अलग है, जमीनी और पानी वाला।
दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है बायोमास में। जब प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्राथमिक उत्पादक जो हम लेते हैं जमीनी, उसमें इसका बायोमास ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। जो भी, अब जब मैं ये बोल रही हूँ प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि किस तरह के एनिमल्स जो हैं उनके बारे में हमने पहले बात की थी। तो उसके हिसाब से ये याद रखना है कि जो ट्रॉपिक लेवल, जो कि टेरेस्ट्रियल एरिया में है, जो जमीनी जो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो वो पिरामिड अपराइट होगा। और जो हम इक्वेटिक में बात करेंगे तो वो कम होगा, क्योंकि बायोमास जो है वो मैंने आपको बताया था कि पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जिसको कि कई बार आप देख सकते हो, कई बार नहीं भी देख सकते। इसके ऊपर जो जीव हैं उनको भी आप माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो होते हैं, बहुत ही छोटे। और इन छोटे को छोटी छोटी मछलियां खाएंगी, छोटे छोटे जीव खाएंगे, और उन जीवों को फिर एक छोटी छोटी मछलियां खाएंगी, फिर उन मछलियों को कोई और खाएगा। इस तरह से जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बायोमास है, जो जो कि इन पदार्थों का जो भार है, वो फाइटोप्लैंक्टन का बहुत कम होता है, उससे ज्यादा जूप्लैंक्टन का, उससे ज्यादा जो है और जो जीव हैं वो जो उसको खाते हैं, उससे ज्यादा जो उससे बड़ी फिशेस हैं जो उसको खाती हैं, और सबसे ज्यादा होता है बड़ी बड़ी मछलियों का वेट, एक तरह से भार। तो इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है एक्वेटिक एलिमेंट में। एनर्जी का पिरामिड हमेशा जो है अपराइट होता है, सीधा होता है। सीधा का क्या मतलब है? पिरामिड शेप ही ऐसा ही होता है कि जो चार सरफेसेस हैं, नीचे से चौड़ा होता है और धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। तो एनर्जी भी इसी तरह से जो लोअर लेवल से अपर लेवल में जाती है तो कम हो जाती है। 10% लॉस में लगता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। एनपीपी क्या होता है हमने देख लिया था, जीपीपी क्या होता है ये हमने देख लिया था। तो उसको इससे रिलेट आप कर सकते हो कि जो भी जैसे कि घास है, घास में जितनी भी एनर्जी है, जितना भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स है, उनमें से कुछ तो हीट में चला जाता है और कुछ जो है वो थोड़ा सा जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो इंसेक्ट उसको खा रहा है, उसमें जाएगा। इंसेक्ट को कोई बर्ड खाएगा तो 10% उस इंसेक्ट की एनर्जी उसमें जाएगी, बाकी हीट में चली जाती है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है जैसे ही हम अपर लेवल पे बढ़ते हैं। Now here there is an example of ecological pyramids. Any calculation of energy content or biomass or number has to be included all the organisms at that trophic level. So trophic level represents functional level, not a species as such. So given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time, as we have seen in food web. There are so many creatures, they are eating different things. So accordingly, you can place them into the first, not first, the base, not the base, the first primary consumer or secondary or the top level. All right, so depends. So here it is an example of a sparrow. If sparrow is eating, a primary consumer, if it is seeds or fruits or peas or any plant-based thing, then it is a primary consumer. But if this sparrow is eating some insects, some worms, then it is secondary consumer because it is eating worm or insect. So insects are the primary consumer because they eat grass. They eat some seed or some plant-based food for their development, right? So depending upon this, you can place any creature into the different trophic levels. हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि किसी भी पिरामिड में जो हमने देखा कि प्राथमिक जो है वो उपभोक्ता है या द्वितीयक है या तृतीयक है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अब एक चिड़िया है, चिड़िया ने यदि कोई प्लांट का कोई बीज खाया, जैसे आप दाने डालते हो, यदि वो दाना खाती है या प्लांट बेस्ड कोई भी चीज खाती है तो वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। और इस बर्ड को कोई बड़ी बर्ड ने खा लिया, किसी और जानवर ने खा लिया, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। लेकिन यदि ये बर्ड किसी इंसेक्ट को खाता है या किसी कीड़े मकोड़े को खाता है, तब ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंसेक्ट को खाया। इंसेक्ट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इंसेक्ट या कीड़े जो है वो
पौधों बेस्ड जो है वो खाने को खाते हैं। तो इस तरह से ये पिरामिड जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। So in most of the ecosystem, all the pyramids are uprights. Producers are more in number, biomass than the herbivores, and herbivores are more in numbers than biomass of the carnivores. And also, energy at the lower trophic level is always more than at a higher level. So as you go higher level, the energy will get decrease. वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने पिरामिड आपको बताया था अभी, एक्वेटिक का इन्वर्टेड पिरामिड होता है, वो इस तरह से होता है इन्वर्टेड पिरामिड, इधर से देख लीजिए। और इसी तरह से एक पिरामिड जो नंबर का है वो इन्वर्टेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोड्यूसर कौन है। सपोज यहाँ पे हियर इन दिस पिक्चर द प्रोड्यूसर इज अ ट्री, ऑलराइट। ये ट्री में, ट्री इज सिंगल, वन इन नंबर, बट देयर आर सो मेनी birds or so many creatures on this tree. So tree is one, but herbivores are more in number and their parasites are again more in number, and then hyperparasites which are on this parasite, they are more in number. So if such type of example come into examination, then you will say the pyramid number will be inverted if the producer is a tree, all right. And this is an ecosystem of aquatic in nature, in a water bodies, it is always inverted if it is in case of number of biomass, all right. So this is the limitation. So that's all. I think we'll end it here. Enough time I have taken. बहुत सारा टाइम ले लिया सर का मैंने क्लास का, तो we'll stop recording here.